challenges to such type of technology face. So, uh, I think the budgets are always going to be balanced. We spoke about engine tax being withdrawn, equalization levy gone. I think we speak about moving to pillar 1 and pillar 2 in the times to come. So that's another point which I think is gone, which probably should affect the overseas investors much more looking at development positively. One solution to Mr. Khan is on this Vivad se Vishwas. I think with that, the department will try and reduce the pending litigation. My request would be, sir, to look at the reason for the litigation actually. That is to be looked at much more closely because the litigation can keep on happening and we can keep on having the schemes to reduce the litigation. But I think if you look at the reasons for this litigation and you can look and invite those areas, I think that probably would have better results. There is one suggestion. So Chopra talked about pollution. Very close to my heart too. Delhi is the third worst city in the country as of the yesterday's Hindustan Times report. Imagine what we are giving to our future generations. I think it is, I always, and I keep writing on this a lot, I think it is my right to live which is being impacted. And I think everyone, be it the center or the state, governments have a responsibility to look at that. So that's another point which I thought is probably is not so much highlighted in the budget or not even talked about. That's another critical area. I think this budget is, Dr. Gupta said, has a number of changes, something to ease out the issues. Did it require 99 changes? Sir will deal with it. We'll have hopefully, a new Income Tax Act in 6 months, which again will hopefully simplify the Income Tax Act. That would be the intent. So I think these changes probably would have some very far-reaching consequences. The markets will go up and down. I remember about 15 years back, when the budgets were announced, both in the afternoon and evening, when the markets were going up and down, and understand the markets are not going up and down because of the budget. There's a cricket match going on and there are bets going up and down because obviously the market is always impacted. So at times the market actually is not I think a factor to be looked at always as to what is the impact of the finance bill on the markets. The markets may react in a different way, maybe because of multiple reasons. So market actually may not be always the important point. Okay. I think the capital gains changes I think are far too many, but I think they are all towards simplifying it, making it 12 and 24 months. I'm not going to go to the details because sir will address those changes. I think those streamline. राकेश को उनकी ये कैमरा आता चलाना थोड़ा बहुत ये वाला कोई नहीं टाइम अच्छा ये ना फ्रेम बन रहा है हमारा So just I get remembrance of one more thing. As I said you that calendar was there. I was the chairman in 2004. So 7 o'clock in the morning I got a call from my regional office. सर वो फैकल्टी भाग गई है,
तो फैकल्टी भाग गई है। मैंने कहा भाई फिर क्या करने, ढूंढो कोई दूसरी ढूंढो। कह रहे जी कोई नहीं आ रही। दूसरी बात बोला, कह रहा भाई यहाँ राड़ा भी हो गया है। मैंने पहली बार सुना था वो वर्ड। मैंने कहा क्या राड़ा हो गया भाई? कह रहा जी ये दूसरी बार हुआ है। मैं रोहिणी रहता था, विश्वास नगर क्लास थी, रविवार था नहीं, गाड़ी वाड़ी चला के भागता हुआ गया मैं। तो क्राइसिस वहां से भी सीखी कि क्लास लेनी कैसे है। तो आज ये राड़ा करने वाला ये, इसको तो हम बाद में देखेंगे। But somehow Issued has given me enough learning how to handle the crisis. So we are now tuned in for the crisis. Friends, let me tell you just in briefing that the block assessment which is being introduced from 1st September 2024, those who are more than 20 years in practice, they know it that prior to 1st July 1995, the search assessment and non-search assessment, there used to be no difference. But 1st July 1995, the government brought a new chapter for the search assessment. In short, we used to call it block assessment. So they used to assess the entire income for 10 years, which is found as undisclosed. Few of the salient feature of that, it is not necessary that you incur the loss and then you adjust. Because that is a block of 10 years which is required to be assessed. So even if you have incurred the losses in the future year and you have a profit in previous year, that was getting the adjustment in the undisclosed income section. Lot of other things have been settled by the court, and this block assessment worked well till 31st May 2003. Thereafter, from 1st June, the settled law was made a different, that is called section 153, a new chapter has been added, 153A BC. Now in this, it started with 6 years of assessment instead of 10, and those 6 assessment years are to be assessed separately each year. Then the question came whether the disclosed income or the undisclosed income is required to be assessed in the block assessment due to such. In that case, the Kabul Chawla leading judgment, which is followed by now Supreme Court judgment in Avisar Biddle, has settled the law that 153A BC, if the abatement has not happened, then in that case, the assessment of undisclosed income is to be done only in 153A BC. Disclosed income you cannot do. This continued for another few years, and the way that is being, you can say, settled, and till 31st March 21, this 153A BC regime continued. From 1/4/21, again they have brought the same scheme of 148, and then there was certain changes from that normal 148, the way back prior to 95. In such assessments, only if something is found, except for the current year, the old year are opened only if there is something which is found. Now, 21 to 31st August 24, this is going on, wherein they will assess 3-year minimum plus 1 current year, and if they find something more, they will assess for 10 year more, 50 lakh of rupees. The threshold limits are there,
asset is being defined, and so on. But somehow, the September 24, from this budget, they have once again introduced the block concept of the assessment, and they have also removed some of the things which have been settled there. What I told you, that loss you incur later on, and you have a profit of undisclosed income, you have a positive income that you adjust. So they have tried to change it. The period of the block assessment is also 6 years. However, when Dr. Girish Ahuja will tell you about the 148, there the period is little 1 year less. Then same one consolidated assessment is to be made for it, and the rate of taxation is 60%. Lot of issue of controversial things which Dr. Girish Ahuja will delete. No interest will be charged in the 234 ABC. There will be no reference to TPO, TP adjustment, and also the 144C, that is DRP, that is also taken, as the Stepney is required to work only till such time the original tire comes into place. With this, thank you very much. Now I would like to welcome Tax Guru and mentor of Voice of CA Dr. Girish Ahuja sir, for his much awaited deliberation on A to Z of direct taxes, Union Budget 2020. Welcome, sir. Good morning to everyone. Sitting on the dais, our chief guest and past president of the Institute of Chartered Accountants of India, Dr. C.A. Amarjit Chopra ji, our principal CCIT of National Business Assessment, as well as National Business Appeal, CCIT, Mr. B.M. Kaharji, Sanjeev Chaudhary ji, past chairman of the past central council member of the Institute of Chartered Accountants of India. अच्छा किया छोड़ दिया. I would always say, why do they fight election? I could fail to understand. यहाँ बैठे हैं दीपक गर्ग, ये भी लेने आया इलेक्शन के लिए, पीछे चुप बैठा है, वो भी इलेक्शन के लिए आए हैं, ये अभिषेक राजाराम जी हैं, ये भी इलेक्शन के लिए आए हैं, और ऊपर तो बैठे हुए हैं ही हमारे संजय अग्रवाल जी. इनको क्या है? ये नशा है, पैशन. और मुझे भी पैशन. इनको गांजा खाने का नशा है, और मुझे तालियां खाने का नशा है. You cannot say anything. I have told them many times not go for election, but they will not listen. They will never listen. That is possible. So coming back, let us start with the budget, clause by clause discussion. We all know there is section called 222 regarding definition of dividend. 222. 222 clause A, B, C, D, E. We are already aware of, and that is taxable in the hands of the shareholder. Earlier it was not taxed in the hands of the shareholder, that was paid as a tax in the hands of the company. I remember when we were redrafting the law. अब redraft फिर भी होगा, मुझे नहीं पता. हमें भी 6 महीने दिए गए थे, और ये भी 6 महीने दिए गए. हमने भी 2.5 साल लगाए थे, और ये भी 2.5 साल ही लगाएंगे. और फिर आएगा नहीं आएगा, I don't know. Because we have already submitted in 2019 the simplified version, where we have more than 550 sections in the Income Tax Act. We gave them in 264 sections without any provision. Without any provision. But I don't know the fate of that law. Again now the redrafting of the law will be there or not, that is time to come. So सीधा करता उस पर shift कर दिया to the shareholder. They said we have no information. Everybody, we have by all annual information statement, everybody will have to show his dividend. Even 1 rupee dividend you have to show. So that was the idea of doing it. But now there is 222F has been inserted. This is because of abolition of 115QA. Buyback of share. People were going for buyback of share as per section 68 of the Companies Act. There was an advantage of going for buyback of share. In the case of buyback, the company had to pay tax at the rate of 20% plus
12% plus 4%, and the shareholder, in the hands of the shareholder, whatever money was received was exempt under 1034A. Complete exempt under 1034A, paid by the company at the rate of 20 plus 12 plus 4. But if you give dividend, dividend is normally taxable at 30% income from other sources, plus surcharge, plus education. So people who are making money, they are making money, 8% was the minimum difference if you buy the share, buy back the share, or if you distribute the dividend. So everybody took a route of buyback. Everybody took a route. Not even in unlisted, both listed versus unlisted. So the government was aware of that they are trying to play with the section 115(2)(a) because the tax collection there is less than if it has gone to. So therefore, they introduced section 2 clause 22 sub clause F, saying that any amount received from the company on account of buyback of share shall be taxable under section as dividend under section 222 F. Yeah, dividend taxable. Simultaneously, section 57 डाल दिया, no deduction will be allowed on account of this dividend. Simultaneously, 194 डाल दिया that company will be under obligation to deduct tax at source like they do it for dividend. तो वहाँ पर भी वो आ गया that but this is applicable from 1st of October 2020. अभी भी किसी कंपनी ने बायबैक करना है तो कर सकते हैं 30 सितंबर, लेकिन माइंड कीजिए एक साल के बाद एक साल कम से कम गैप होना चाहिए पिछले बायबैक से, क्योंकि मिनिमम एंड यू कांट बाय बैक मोर देन 25. ये तो लॉ ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा है. मैं भी कई कंपनी में डायरेक्टर था और रवि जी भी है, उन्होंने बहुत बायबैक की. हमने नहीं बताया कि ये होना चाहिए. Please don't take it that way. But of course, buyback was very prevalent. Now the chapter has been closed. 115(2)(a) gone, 1034(a) gone, and you have to pay tax under section 56 on account of dividend, although it is a dividend under 222F and no deduction of whatsoever is allowed on that. Clear है sir? ये 222. Next change, section 2 clause 42A. Section 242 क्या कहता है? It is a definition of short-term capital. Long-term का नहीं. Long-term the 242B में. अब कहते हैं what is the long-term? What is long-term capital? A gain arising from long-term capital. What is the short-term gain? A gain arising from short-term capital. What is the long-term asset? Long-term asset is one which is not a short-term capital. ये सारा law है. लेकिन अब क्या कर दिया? पहले 3 dates होती थी. 12 months, 24 months, 36 months. 12 months was for listed securities other than units and unit of mutual funds and business risk. 12 months. Unlisted share and immovable property 24 months. And all other 36 months. यही law है. अब इन्होंने 2 ही कर दिए. If had not more than 12 months, short term. If had not more than 24 months, short term. उसमें वही है जो listed share थे. अब listed securities करते हैं. Even unit will also be covered under 12 months. Unit, all unit, and a unit of mutual fund, but not equivalent to 12 months. जितनी भी assets, maybe gold, maybe any kind of asset. If it is held for more than 24, it is long term. If it is held not more than 24, it is short. सीधा पहले पे ये short term. I remember when I was going for the lectures, the last 1 month or more than that. Even 2 days back, we were sitting in the office and Raviji was also sitting. I said they are going to increase the capital gain, long-term capital gain under 112A from 10% to 15%. And for short-term capital gain, 111A to from 15% to 20%. Nobody agreed. Nobody. They said nothing doing, ये नहीं हो सकता. कहा था ना आपने ये नहीं हो सकता. मैंने कहा यही होगा. इस वक्त मार्केट तेज है. सवाल लेंगे वो हमारा. और वही किया उसने. अगर ना होता तो आज तो मार्केट ऊपर हो गई. But today it has gone up. Yesterday it went down and again come up. So market के बारे में तो वैसे ही नहीं पता होते तो absorb तो करेंगे. So what has happened now?
The question is not only 112A. Now all long-term capital, whether from shares or any other, are not taxable at the rate of 12.5%. 10 has been raised to 12.5. जो शेयर्स थे या यूनिट ऑफ इक्विटी लिमिटेड फंड थे या बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट थे, उसमें 112A ऑलरेडी कहता था कि दैट यू आर नॉट अलाउड एनी इंडेक्सेशन थे, वहाँ इंडेक्सेशन अलाउड ही नहीं था 112A, और 112A में ये भी कहता था 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा. Now what has happened? Now they have said proviso 2 of section 48, which allows you indexation if there is a long-term capital gain. It allows you indexation of the cost of acquisition and cost of improvement. That has been done away with. It's not done away with. No, it is up to before 23rd 7th you will be allowed index. So any transfer of a long-term capital asset before 23rd of July, what you call 2024, will be eligible for index cost of acquisition and index cost of improvement. But any capital gain arising from the transfer of a long-term capital asset on or after 23rd of July 2024 will not be eligible for any indexation, whether of cost or cost of improvement. लेकिन वो अभी भी है that you can assume the market value as on 1st April 2001 as it. But वहाँ पर भी एक problem है. They have said market value as of 2001 or the stamp duty value if available. Stamp duty value available है तो वो या market value उसको तो stamp duty value लोगे. Otherwise market value. इसमें भी बहुत ज़्यादा dispute होता है. When it is wherever available, market value is not available. Stamp duty value is not available in Delhi. In certain places it is available. It is not available in Delhi. It is wherever available. And if it is not available, then one has to go to the valuation officer, not not department valuation officer. You can go to the valuation to return to the market value. अब मेरी सजेशन तो यही होने जा रही है, आज ही करेंगे कि इसको भी 1 अप्रैल 2007 कर दीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2007 के बाद ऐसी कोई इंडिया में स्टेट नहीं है जहां पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं. तो डिस्प्यूट खत्म होगा ना. अभी तो डिस्प्यूट चल रहा है. मैं कहूँगा मेरे मार्केट वैल्यू नहीं है, इट इज नॉट अवेलेबल हियर, आई टेक मार्केट वैल्यू फ्रॉम वैल्यूएशन ऑफिसर, और जो वैल्यूएशन ऑफिसर है आपको पता है कैसे मार्केट वैल्यू. सो माय पॉइंट इज ये डिस्प्यूट भी सेटल होना चाहिए. तो शहर से नुकसान हो गया. मैं कहता हूँ कईयों को बहुत फायदा हो गया. 12.5%. ठीक है, 111 नहीं, 15% has been raised to 20%. वो तो ये चाहते नहीं है ना रोज शेयर बेचो और खरीदो और कहो कि हम कब आ रहे हैं. कहीं कहते हैं थोड़ा बढ़ गया 5%, बेच दो, फिर रहेगा, फिर 5% बढ़ेगा, फिर बेच दो, खरीदते रहो, बेचते. उसमें भी एक डिस्प्यूट होता था कि ये बिजनेस इनकम है या कैपिटल गेन है. नाउ दे हैव रेज्ड 15% to 20%, प्रोवाइडेड एसटीटी हैज बीन पेड. थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन लोग ज्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होंगे टू कीप इट एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. सभी है जो प्योर इन्वेस्टर है सर, वो कमा कर ही सकता है जब लेकर भूल जाए. ये जो रोज करने वाले हैं ना, वो फिर दफ्तर में ध्यान नहीं रखते. हमारा भी एक पार्टनर है, वो सवेरे 1 बजे से पहले आता ही नहीं है, पूरी मार्केट करके आता है. और उसको भी मैंने बता दिया ये बढ़ने वाला है. आज आया नहीं, उसके बेटे का 18th बर्थडे है, आज बढ़ने वाला नहीं माना. अब देखिए तेरा 12.5 20%. और वो तो एपेंडो भी करते हैं, वो तो हमारे इंस्टीट्यूट ने भी अलाउ कर दिया एपेंडो. आई डोंट नो भाई कोई जिंदगी में एपेंडो में कमाता है. द रिपोर्ट ऑफ द रिजर्व बैंक की 70-80% लोग हैव लॉस्ट द मनी इन एपेंडो. 90% कह लीजिए लॉस. ये लगता है ये भी बीच में है. Sir, nobody has earned money in Appendo. It is only if you have a luck you can earn money from anywhere. Otherwise नहीं. लेकिन उसमें भी तो क्या बढ़ा दिया, एसटीटी बढ़ा दिया. एसटीटी तो उसमें भी बढ़ाया है. जो प्रीमियम एंड ऑप्शन है 0.0625 has been raised to 0.1 रेट कर दिया, और दूसरा 0.125 था उसको 0.2 कर दिया. So there STT has been increased in a case of वो वाले जो फ्यूचर एंड ऑप्शन. फ्यूचर के लिए STT is now 0.2 और उसके लिए 0.1675 जो 25 था 0.1 कर. So my point is नहीं करिए तो अच्छा है,
ये डेरिवेटिव, बाकी तो लोग बिटकॉइन में भी बहुत कमा चुके हैं, देख लिया था। बड़े लोग मुझे कहते थे बिटकॉइन बिटकॉइन वी हैव मेड मनी, ही हैव मेड मनी। आई सेड नोबडी हैज मेड मनी इन बिटकॉइन टिल टुडे। सब बेकार की बातें थी। और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मत करो तो अच्छा है, करोगे तो मेरा पार्टनर भी ऐसे करता है, उससे पूछ लेना क्या करता है, मैं नहीं करता। आई डोंट, मैं किसी में नहीं पार्टनर। चलिए वापस अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं। सपोज यू हैव अक्वायर्ड एन एसेट बिफोर 2001, इट इज लैंड। You have acquired an asset before 2001, maybe it is land. The price of that land during the 1st April 2001 और आज की प्राइस में बहुत डिफरेंस है। Even if you take the fair market value of 2001, क्या होगा? मैं कह रहा हूं 10 लाख एक मिनट में, तो मल्टीप्लिकेशन कितना अराउंड है? 3.63। Am I right? मल्टीप्लिकेशन कितना अराउंड है? 3.63, 3.63 works out to 36 लाख 30,000। यही होगा करीबन, मैंने जो कैलकुलेशन की थी। और बेचे को आज 40 करोड़ की, आज 40 करोड़ की बिक्री है, 30 लाख में आपको 20% देना पड़ता था। और अब उसको 10 करोड़ 10 लाख ही मान लो, तो 39,90,000 को आपको 12.5%। Rather, it is advantageous for those who had the asset before 1st April 2000। वो एडवांटेजियस है। और जो किसी ने 2-3 साल में खरीदी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ी ही नहीं, उसके लिए नुकसान होगी, क्योंकि वो तो अब उसी में देगा ना जो उसके। माय पॉइंट इज दिस सी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन टू पर्सन। गोल्ड भी उस वक्त 4,500 4,600 था, आज गोल्ड की कीमत कितनी है? सो मेरे पॉइंट से बेबी यू विल बी बेनिफिटेड बाय पेइंग 12.5%। और एक और सुन लीजिए, पहले 54 का बेनिफिट मिलता था आफ्टर इंडेक्सेशन। एम आई राइट? तो ना 54 2 करोड़ की एसेट ली लैंड, सपोज कीजिए 2.5 करोड़ उसकी इंडेक्स कॉस्ट है, 5 करोड़ की बेची, तो आपको कितना इन्वेस्ट करना था? 2.5 करोड़। अब कितना करना पड़ेगा? 3 करोड़। अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई। व्हाई? बिकॉज यू कुड टेक द इंडेक्सेशन पोर्शन एट होम। ले जा सकते थे कि नहीं? जो इंडेक्सेशन को 2 का अगर 3 भी इंडेक्सेशन हुआ तो 1 करोड़ मेरे घर आ गया ना, और 2 करोड़ तो आ ही गया, 1 करोड़ और आ गया। सिर्फ मुझे 2 करोड़ इन्वेस्ट करना था। अब मुझे कितना करना पड़ेगा? 3 करोड़। तो लोग कहेंगे टैक्सी दे दो यार, इन्वेस्ट करके अगर मैंने सर ये करना है। और लेकिन 54 एफएल को फायदा हो, 54 एफ को फायदा हो गया, क्योंकि 2 करोड़ का 5 करोड़ लगाना था, और 5 करोड़ होता था कैपिटल गेन, 2 करोड़ था, 2 बड़ा 5 मिलता था। अब क्या मिलेगा? 3 बड़ा 5 मिलेगा। आपने नोटिस किया? मैं बता रहा हूँ। कॉस्ट 2 करोड़, इंडेक्स कॉस्ट 3 करोड़, मार्केट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 करोड़। अगर मैं 10 करोड़ वाली बात नहीं कर रहा, 10 में तो बड़ा मुश्किल है, तो अब मार्केट वैल्यू 5, तो क्या मिलता था? कैपिटल गेन 3 into 2 into 5 by 10, sorry 2 into 5 by 10, यही मिलता था। 2 into 5 by 10 is how much? 40%। यही था। लेकिन अब क्या होगा? 3 into 5 by 10, 60%। सो 54 एफएल को फायदा हुआ, क्योंकि वो विदाउट इंडेक्सेशन है, तो वो घर तक कुछ ले जा नहीं सकते थे। 54 में घर तो ले जा नहीं सकते थे, बिकॉज इट हैज टू बी केप्ट देयर। और वो उस पूरे का पूरा नेट कंसीडरेशन प्राइस इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब नेट कंसीडरेशन प्राइस इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन क्योंकि कैपिटल गेन ज्यादा होगा बिकॉज विदाउट इंडेक्सेशन, तो ऑब्वियसली परसेंटेज विल बी मोर अंडर 54 है, बट एज कंपेयर टू 54 उल्टा है। समझ में आ गया सर? आई थिंक आई हैव बीन एबल टू गिव यू द एनी क्वेश्चंस में हो तो पूछ नहीं, तो मैं आगे चलूं। सो मेरा पॉइंट ये है, it had to happen, but very good thing that for all other capital assets, long-term capital gain is 12.5%। एक रुक जाइए, जो unsecured और unlisted debentures है और unlisted bonds है, वो यहाँ नहीं है, उसको इंक्लूड कर दिया सेक्शन 55 AA में, saying that normal provisions will apply, और वो और ना शॉर्ट, उसको शॉर्ट टर्म मानकर पूरा टैक्स लगा। कौन से वाले? अनलिस्टेड डिवेंचर्स, अनलिस्टेड बॉन्ड, बाकी के लिए कोई प्रॉब्लम। अनलिस्टेड डिवेंचर्स एंड बॉन्ड विल नाउ बी टैक्सेबल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म का मतलब पूरा 30%, पूरा 30%। ऐसे नॉर्मल, अब इसको नॉर्मल इनकम क्यों कहते हो? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल इनकम नहीं होता है। इट इज देयर, क्योंकि लॉस होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, तो क्या बाकी इनकम से हो जाएगा लॉस?
ये कहा जाता है क्योंकि ये नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट अप फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इट कैन नॉट बी सेट अप फ्रॉम अदर इनकम। व्हाई डू से इट इज अ नॉर्मल इनकम? उसको शॉर्ट टर्म ही करेंगे, लेकिन टैक्सेबल है नॉर्मल रेट। टैक्सेबल नॉर्मल रेट 30 जरूरी थोड़ी है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो नॉर्मल रेट होती नहीं। तो इट इज लाइक दैट। क्लियर हुआ सर? ये आपको मैंने सेक्शन कौन से बताए? आई हैव गिवन यू सेक्शन 242A, 111A, 112, 112A, और इसके साथ साथ नॉन रेजिडेंट के सेक्शन है 115AB, 115AC, 115ACA, 115AD and 115AE। इसमें भी 10% टैक्स होता है, which has been raised to लॉन्ग टर्म का 12.1%। तो ये जितने भी सेक्शन नॉन रेजिडेंट के थे उसमें से ACA नॉन रेजिडेंट का नहीं है, रेजिडेंट का है। But this rate, wherever the word 10% was given in long-term capital gain under 115AB, ACAD, ACA, AD, AE, and of course E, please note that 10% has been raised to 12.1%. Clear हुआ सर? ये clear? आई। मैं तो ये रोज कहता था और पिछले साल भी था कि न्यू रिजीम आ रही है और ओल्ड रिजीम बिल्कुल खत्म कर दी। I have told everybody they have plan of abolishing the old regime. Almost decided था, लेकिन मैं बीच में कहता था होगा ही नहीं कभी abolish. They have not given any incentive under old regime. कोई बेनिफिट नहीं दिया ओल्ड regime में, ना टैक्स स्लैब का, ना डिडक्शन, ना 80C, ना 80D, जो भी डिडक्शन है वही की वही रखी है। Even जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है for new regime has been raised to 75,000, for old regime it remains at 50. पर्पस समझ आ गया? तो चाहते नहीं, एक कारण है जिसलिए रखा हुआ है। एक सेक्शन 1017 है जो ओल्ड रिजीम में अलाउड एग्जेम्प्ट है, नई रिजीम में एग्जेम्प्ट नहीं। तो सेक्शन 1017 क्या है? डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस received by member of parliament or MLA is fully exempt. Have you understood the point? अगर वो ऑर्डिनरी रिजीम में आए तो उनको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और चैरिटी बिगिंस ऑलवेज एट होम। तो वो आएगा ही नहीं जब तक 1017 का बेनिफिट है। ये पर्पस भी है सर न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम को कंटिन्यू करने। और दूसरा कर भी लो तो क्या है, यू हैव टू ऑप्ट फॉर इट। कल 31 तारीख का ऑप्ट कर दो, नहीं तो गए। ये भी तो आपको पता है, when you are by default in the new regime, you are by default in the new regime, कोई फायदा नहीं है। मैंने तो देख लिया, मैं वहां गया था लड़ने के लिए क्योंकि मुझे न्यू रिजीम नहीं पसंद आ रही थी, only for one reason, 8022B. 8022B is for an author who gets a deduction of 100% or 3 lakh rupees, whichever is less. मेरे का 3 लाख पे 30% 90,000 बनता है, प्लस सरकार पर एजुकेशन टैक्स। मुझे तो ऑर्डर भी नहीं जाना है, ठीक है, वो 1.5 लाख वगैरह वो तो मिल गया, मैंने जाना। बाद में इस पर रिटर्न भरना था तो रियलाइज किया कि मेरा तो टैक्स 12 लाख ज्यादा बनता है ऑर्डर शिफ्ट जाने। तो आई शिफ्टेड टू न्यू regime. So the surcharge in the case of new regime is maximum 25%. Am I right or not? But in the case of others it is 37%. So surcharge 25% है और 37 हो जाता है, और इस पर लोगों ने कमाई बहुत करी है शेयर से, तो क्या 5 करोड़ से ऊपर भी इनकम हो गई तो 37 जाएगा ऑर्डर, या तो हो जाएगा। So my point is please work out. आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां डालिए अपनी रिटर्न में अंडर ओल्ड रिजीम क्या आएगा, अंडर न्यू रिजीम आपको बता देगा, जो कम होगा उसी में कर देगा। सर उससे ये नहीं पता, और भी पता होता है 234A, 234B, 234C का इंटरेस्ट भी तो कम हो जाता है। अगर मैं न्यू रिजीम में जाए तो पैसा अगर कम दिया तो और भी कम होगा। सो यू हैव टू वर्क आउट एंड देन गो, बट बेस्ट टेलिंग यू न्यू रिजीम इज मच बेटर देन द क्योंकि क्यों कर रहे थे, मैंने उनको बताया था। कारण ये था कि यहाँ पर तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 80C में कभी जमा कराए नहीं और डिडक्शन ले लेते थे, 80D की डिडक्शन ले लेते, 80G की भी लेते थे। वो कहते थे 98% तो स्कूटरी में आते ही नहीं, तो 2% स्कूटरी में आएंगे, ले लो क्लेम, डिडक्शन ले लो, because you don't have to submit any paper, you don't have to submit any document, and they were claiming deduction. एक तो ये कारण था, और एक कारण उन्होंने मुझे बताया, वो जो कई बार बता चुका हूं आपको। पहला कारण यह था कि 70% HRA claim of the employees are bogus. 70% आप सब रिटर्न करते सब पता कि they are bogus claim.
somebody is paying to the father, somebody paying to mother, somebody paying to the brother, or somebody even paying to the wife. वो कहता घुसने नहीं देती, कहती पहले रेंट दो मेरे को। Sir, no judgment है हमारे फेवर में। There are 2 judgments of the tribunal which are in our favor that you can pay by rent to your wife also. कहते एक तो ये। तो दूसरा कारण क्या है? कहते सैलरी वाले दान बहुत देते हैं। सिर्फ सैलरी वाले ही दान देते हैं और तो कोई देता ही नहीं। अब आपको पता है क्या है? मेरे को पूछना है ना, मैं उसको रिपीट करता, मैंने उनको उस दिन बताया था सर आपके सामने मैं वही था। मैंने कहा कबीर दास लिख के चले, चिड़िया चोंच भर ले गई नदी न घटे और नी, दान दिए गम ना घटे, कह गए भक्त कबीर। कहा बजा जितना दिया उतना ले लिया और सामने रक्षा भी मिल रही है टीकी में। ये हो रहा था सर। थोड़ा सा लोग दान बहुत देते हैं, आपने कभी दान दिया? वही सैलरी वाले देते हैं दान। तो इसलिए उनके दिमाग में तो खत्म करने का था, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म ही है, बिकॉज यू हैव बीन गिवन बेनिफिट ऑफ टैक्स आल्सो अंडर 115 BAC IA में 10,000 रुपए का फायदा हुआ है। तो स्लैब बदल दिया, पहला स्लैब 3 का नील है, दूसरा 3 to 6 होता था, तो 3 to 7 कर दिया 5%, तो 1 लाख रुपए में 5% लगा जो 10 लगा। तो 7 वाला 6 और 7 के बीच में 5 लगेगा जो 10 लग रहा था, तो 5,000 मान लिया। उसका अगला स्लैब है 7 to 10, वो पुराना था 6 to 9, सो 9 से ऊपर जो 1 लाख बढ़ा उसमें भी 5,000 का फर्क पड़ा, 10,000 बाकी कोई फर्क। और सेकेंडली स्टैंडर्ड डिडक्शन कभी मुझे भी मिला 17,500 मल्टी प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन से इतना बेनिफिट तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो सैलरी की कोई इनकम भी आती है, नहीं आती तो 10,000 तो सबको मिलना ही मिल रहा है, प्लस सरचार्ज अंडर सेक्शन 150 BAC IA। दैट बेनिफिट हैज नॉट बीन गिवन टू ओल्ड रिजीम एट ऑल। ओल्ड रिजीम को कुछ दिया ही नहीं उन्होंने, तो ओल्ड रिजीम तो आप भूल जाना। और वैसे भी 80G भी लोग बड़ा शोर बचाते हैं, तो किस लिए 80G चाहिए आपको? आपने कल सुन लिया 58% कंपनीज हैव गॉन फॉर न्यू रिजीम, उनको क्या 80G मिल चाहिए? जब न्यू रिजीम में 80G अलाउड ही नहीं है, और 58% का भी कारण क्या है? जो 42% है वो वाली है जिनका मैच क्रेडिट पड़ा, जो मैच क्रेडिट है वो तो जाएगा ही जाएगा, बिकॉज ही हैज टू टेक द बेनिफिट ऑफ मैच क्रेडिट, अदरवाइज देयर इज वी अंडर न्यू रिजीम देयर इज नो मैच क्रेडिट। इंडिविजुअल एक्चुअली तो कहाँ जा रहे हैं? न्यू रिजीम में जा रहे हैं। सो क्वेश्चन इज 80G करना क्या? मैं इसलिए इसको लाया, इस सेक्शन 1023C है चैरिटेबल ट्रस्ट, और एक 11, 12, 13 मुझे याद है 2 साल पहले मैं गया था, तो इन्होंने उन दोनों को अलाइन कर दिया। 1023C और 11, 12, 13 में कोई फर्क नहीं, सिर्फ एक ही फर्क था। 11, 12, 13 में 9A दे सकते थे, 9A फॉर्म, 1023C में नहीं। तो मैंने ये कहा जब ये बराबर हो गया, इसको मर्ज क्यों नहीं करते? लास्ट टाइम में क्या मर्ज कर दीजिए। अननेसेसरी सेक्शन 1023C has 23 प्रोवाइजो, 23 प्रोवाइजो है 1023C, और हर प्रोवाइजो का नीचे एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 3, और फिर भूल गए 2A 2B, ये 3 एक्सप्लेनेशन है। कर क्या है? इसको मर्ज कर। लास्ट टाइम कहते अगली बार करें, चलो मान लिया, मर्ज नहीं किया। मर्ज का मतलब समझिए नहीं, क्यों सेक्शन हटाया नहीं, नो 1023C में लिख दिया है कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद आपको इस सेक्शन में अप्रूवल नहीं मिलेगी। इस सेक्शन में 1023C जब अप्रूवल मिलेगी नहीं तो आप एग्जाम्प्ट नहीं होंगे, पर दिस इज व्हाट सेक्शन तो कर तो नहीं सकते। सेक्शन 1023C में सब क्लॉज 3IAB था, 3IAC था, 3IAD था, 3IAE था। वो AD और AE वो जो 5 लोग हैं, और A3A और AB है यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन व्हिच आर होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। यही है ना सर, इनको रखना है। इनको तो माफ भी किया हुआ, इनको तो ऑडिट भी नहीं कराना होता, इनको तो कोई रिपोर्ट भी फाइल नहीं करनी होती, तो इसलिए उनको तो रखना था 5 करोड़ से नीचे वालों को। तो सेक्शन कैसे लगा रहे? तो उनका क्या 1023C IB VI और VI जिसके लिए अप्रूवल मांगते थे, वो अप्रूवल 1 अक्टूबर 2024 के बाद अप्लाई ही नहीं कर सकते। और जो ऑलरेडी अप्रूवल ले चुके अप्रूवल
वो 5 साल कंप्लीट होते ही यहाँ से हटके अपने आप 11, 12, 13 में जाना ही पड़ेगा. So meaning thereby section exists, but no more approval on or after 1st of October 2024, and those who have applied before may be given approval, but whenever next time the renewal happens, they will not be covered under there. They will have to go under new, what do you call it? The second regime, that is 111, 12, 13. वैसे तो बहुत अच्छा है. वो न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी के जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारे सेक्शन 10(23)(6) में लिखा है, income from a university or educational institution not for making profit but for imparting education. They who solely who is engaged solely in providing the education. solely का मतलब सिर्फ एजुकेशन कर सकते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते. अगर आपने एक ब्रांच को, बैंक के ब्रांच को वहाँ दे दिया ब्रांच, वो भी टैक्सेबल, पूरा टैक्सेबल होगा और आपकी एग्जम्पशन भी कंसिडर कर सकते हैं. आपने कोई आउटसाइडर को कुछ दे दिया, कवर था. सिर्फ स्टूडेंट के लिए जो करे वो अलाउड था, अदरवाइज बाकी किसी और आउटसाइडर के लिए कर ही नहीं सकते. अब रिन्यूएबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप रिन्यूअल के टाइम पे उधर शिफ्ट हो जाएंगे 11, 12, 13 में, तो इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट आप 11, 4 में काम कर ही सकते. तो वहाँ पर भी एक इजी हो जाएगा, बेटर सेट टू प्रिपेयर. एक और चीज, एक तो मर्ज हो गया, मर्ज मतलब प्रैक्टिकली मर्ज नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिकली मर्ज कर दिया कि यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकोगे अप्रूवल के लिए, आपको इधर जाना ही पड़ेगा. तो मर्ज तो खत्म हो गया ना, उसकी वैल्यू खत्म. पर वो रहेगी 5 करोड़ वाली नीचे, वो नहीं चेंज हुई, वो कोई मर्जिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वो वही का वही है. मर्ज हुए मर्जी हुए IVBVIVIA, इनके लिए आपको आगे से अप्रूवल नहीं मिलेगी. And you don't get exemption letter in 23C without having a approval. तो ऑटोमेटिकली आपको 11, 12, 13 में जाना. क्लियर है सर? एक और चीज है, ट्रस्ट आपस में मर्ज होती है. हालांकि 150 TD में लिखा था कि आप मर्ज कर सकते हैं, लिखा है यू कैन मर्ज इट विद अदर प्रोवाइडेड दे आर रजिस्टर्ड, लेकिन कंडीशन कोई नहीं. और 12A में डाल दिया आप दो ट्रस्ट आपस में मर्ज. पहली कंडीशन कि वो मर्ज करो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के. दूसरी कंडीशन, और कंडीशन दी और कुछ नहीं किया. और उसने कहा कि 150 TD जो एक्रीडिटेड इनकम का था वो मर्जर के टाइम पे नहीं लगेगा, अदरवाइज वो लगना था बिकॉज ऑफ 150 TD सबसेक्शन 3 क्लॉज 3 वो हटाकर देना. सो प्लीज अब आप आराम से कंडीशन को सेटिस्फाई करिए. कंडीशन भी प्रिस्क्राइब होगी हर कंडीशन, जो प्रिस्क्राइब हो गई तो आप मर्ज कर लीजिए, पर दोनों रजिस्टर्ड होने चाहिए, दोनों अप्रूव होने चाहिए, और आपको बताया सिमिलर ऑब्जेक्ट के लिए होने चाहिए, और तब आप मर्जिंग कर सकते हैं. You will not attract the provisions of section 150 TD जो टैक्स एक्रीडिटेड का. सो ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया. और अब आइए, मैंने सेक्शन 16 भी कर दिया, अब तक सेक्शन 28 सेक्शन में कुछ नहीं किया, एक एक्सप्लेनेशन डाल. एक्सप्लेनेशन नंबर 3 हुआ क्या? चेन्नई प्रॉपर्टी की जजमेंट और भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, दैट you can be in the business of letting out of the house. And if you are in the business of letting a house property, you can be taxed under the head profit or gain from business separation. And once you are taxed under the head profit or gain from business separation, you are allowed all deductions which are there under 30 to 37. Whereas in the case of house property, you are allowed only one deduction, that is standard deduction 30%, or interest on money borrowed with the 24%. So अब उन्होंने clear कर दिया. It is hereby clarified, ये explanation 3 लिखा है, it is hereby clarified, if there is a residential property or part of the residential property which is given on rent, the income from that property will not be taxable under the profit or gain from business profession. It will be taxable under the income from house. बिल्कुल क्लियर कर दिया. सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए किया, सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए किया. कमर्शियल के लिए अभी भी लेट आउट करें तो हो सकता है बिजनेस चैप्टर में आ सकता है, प्रोवाइडेड वो चीजें हैं. अदरवाइज रेजिडेंशियल अब तो भूल जाओ. ये बिल्डर कई बार रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाकर किराए पे दिखाते हैं, तो वो टैक्सेबल अंडर हियर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. और एक ऑलरेडी है ही स्टॉक इन ट्रेड, वो तो 23(5) ऑलरेडी है.
कि स्टॉक इन ट्रेड अगर आपके पास है और आपने उसको बेचा नहीं है and if it is held for more than 2 years then it is treated as deemed to be let under section 23(5) और deemed to be let तो कई हाउस प्रॉपर्टी में है, बिजनेस के चैप्टर में तो deemed to be let वाला पार्ट क्लियर हो गया सर। ये मैंने कर दिया। अब आया एनीवन मैंने वही तो बोला, बाकी मैं थोड़ी बिजनेस लीड करता था, तो उसका ही काम होता, पर्सनल थोड़ी था। वही कंपनियां फर्म है जो उसको बिजनेस लीड करके बिल्डर का नाम लिया ना मैंने, they were treating it as a business income and claiming deductions. Now they can't treat the residential property or part of the residential or business income. They will have to give the income from house property, जिसमें से 30% reduction मिलेगा और इंटरेस्ट और मनी बोरो मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। 24 में क्लियर कर दिया, वहां दिया, यहाँ नहीं। ये क्लैरिफाई करा है उन्होंने। एक्सप्लेनेशन 3 इंसर्टेड अंडर सेक्शन 28 क्लियर है जी। पीजी चला अगर रेजिडेंशियल है और वो जीएसटी के प्रोविजन के अंदर कुछ फर्क आ जाता है, ये मैं पहले बताऊं। जीएसटी के प्रोविजन में तो आपको पता है रेजिडेंशियल वाले में नहीं लगता है मेरे हिसाब से जीएसटी, पीजी में लगता है, वो कमर्शियल मान लेते हैं उसको, वो कमर्शियल मानते हैं। देखिए दो चीजों को हम मिक्स ना करें तो अच्छा है। जीएसटी मुझे आता नहीं है, इनकम टैक्स में आता है तो बता देता हूँ, मुझे नहीं आता जीएसटी पूरा, गलत बोल दूँ कोई और चीज हो जाए तो मैं आई एम नॉट सही बन रहा। आई नो दैट वो उसको वो कमर्शियल मानकर उसको कर, दे आर फाइटिंग ऑन दिस ग्राउंड इट इज रेजिडेंशियल बिकॉज इट इज लेट आउट टू दी वो जो गेस्ट हाउस बना रखे हैं या वो बच्चों को रहते हैं इसलिए। तो मैंने कहा मैं जानता नहीं सर, आप तो आ रहे ही यहाँ पर रेजिडेंशियल में, तो इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। चलिए अब एक था कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ सिर्फ न्यू रेजिम के लिए। एम्प्लॉय का आजकल जो कंट्रीब्यूशन है न्यू पेंशन स्कीम में हो रहा है, गवर्नमेंट में भी हो रहा है। गवर्नमेंट में अलाउड था एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट 15%, लेकिन गवर्नमेंट को तो क्लेम करना ही है रिडक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट के केस में तो इनकम टैक्स नहीं लगता तो क्या होता, लेकिन नॉन गवर्नमेंट के केस में employer could contribute only 10%. Deduction under 36(1) IVA was allowed to the extent of 10% contribution by the employer to the national pension scheme of the employee. और 80 CCD सबसेक्शन 2 में लिखा था और 17 सेक्शन में लिखा था, ये जो भी आएगा पहले इसकी ऐड कर लीजिए और बाद में उसको 80 CCD में वो 10% अलाउड होगा। अब सुन लीजिए क्या वेलकम अब इनडायरेक्ट टैक्स। आजकल पता दुकान हल्की है तो इसलिए आराम से आए। तो दुकान तेज होती तो सबसे पहले यही बैठे होते, मैं बता रहा हूँ सर। इनकी दुकान तो 4 जीएसटी काउंसिल लगती है, 4 बार लगती है, हमारे तो दुकान एक ही बार लगनी है साल में। ये भी तो बात है ना सर, आई एम राइट और रॉन्ग? जीएसटी काउंसिल तो 4 हो जाती है साल में, तो 4 बार आपकी अमेंडमेंट आती है, हमारी तो अमेंडमेंट सिर्फ एक ही बार आती है। थोड़ी देर तो हमें चलने दे सकते। चलिए coming back sir, so 36(1)(4) में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नॉन एम्प्लॉयर कैन कंट्रीब्यूट 14% लाइक नॉन गवर्नमेंट, और वो एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 36(1)(b)(a). 14 10 के बदले 14 अलाउड करेंगे। एम्प्लॉय का 14% पहले उसकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा, फिर 80 CCD में वो 14% लेस हो जाएगा। तो ये एक एडवांटेज उन्होंने दे दी जो नेशनल न्यू पेंशन स्कीम में है। बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट के केस में तो पहले ही 14% था, नाउ इट इज 14% फॉर ऑल वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। ये एक एडवांटेज दिया है। थोड़ा देर सोचते रहे और प्रॉमिस भी किया था, लेकिन वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। 43B एज का कहा था शायद 1 साल के लिए डेफर करेगा, लेकिन कोई डेफर नहीं हुआ। 43B एज रिमेन्स देयर। सो मैं सोच रहा था कि उन्होंने प्रॉमिस किया था दैट वी विल डेफर इट फॉर 1 ईयर, बट इट हैज नॉट बीन डेफर। पर ये मोदी की गारंटी नहीं थी, किसी और की थी, इसलिए हो सकता है।
मैंने तो बोला थोड़ी हाथ को मर्जी बोली। बोल के गए थे ना, मैं क्या नहीं किया। अब एक और नई चीज आई है, आज तक क्रूज शिप बहुत होते हैं, क्रूज पे जाते हैं अब्रॉड, तो कहते हैं अब्रॉड जाते हैं, इंडिया में भी तो क्रूज शिप करा दो, तो क्रूज शिप नॉन रेजिडेंट इंडिया में चलाएगा, तो प्रेजेंटिव इनकम डाल दी 44 BBC, they will have to pay tax at the rate of 20%. Presentive, जैसे 44 80 और 44B ऑलरेडी प्रेजेंटिव है, 44BB ऑलरेडी प्रेजेंटिव है, और 44BC डाल दिया क्रूज शिप, वो जो नॉन रेजिडेंट यहाँ पर चलाएंगे, अब वो वाले जो आप वहाँ जाकर जाते थे घूमने, अब यहाँ भी घूमे करिए, और उसके लिए उनको टैक्स 20% देना पड़ेगा। साथ में सेक्शन 10-12 में डाला कि वो दोनों अगर है रॉयल्टी भी ली, उसको रिलीज रेंटल मिला है, और सेम कंपनियां हैं तो उसको माफ, ये 44 एक बड़ा चेंज आया 47 क्लॉज 3 आई। अभी तक था व्हाट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट अंडर ए गिफ्ट और ए बिल और ट्रांसफर टू इररिवोकेबल ट्रस्ट, ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, इसमें कोई टैक्स नहीं। दो जजमेंट आ गए, एक जय ट्रस्ट में, you can trust can also give gift और एक जजमेंट है कंपनी के लिए कि कंपनी कैन आल्सो मेक अ गिफ्ट टू द अदर कंपनी। तो ये क्या हो रहा है, इसलिए 4730 लिख दिया, where there is a transfer by an individual or HUL under a gift or under a bill or to an irrevocable trust, तभी वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को गिफ्ट देती है तो वो ट्रांसफर माना जाएगा, तो माना जाएगा, सिर्फ उनको छोड़ा है, बाकी को नहीं छोड़ा। ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 47 क्रॉस 3I में वो चेंज कर दिया, वो देखिए ये आ गया 56 मैंने 56 वो एंजल कर रहे हैं, मैं तो समझ नहीं आता, एंजल के साथ बाकी रावण भी निकल गया। हम तो पहले सुबह करते थे 10 रुपए की शेयर, 290 रुपए प्रीमियम, कलकत्ता से शुरू हुआ था, याद है? 10 नई कंपनी का शेयर 10 रुपए प्रीमियम, 990 रुपए कर था ना रवि जी, 5000 प्रीमियम। और उसके लिए ये सेक्शन 56 to 7B लाए गए that if you are a company in which public are not substantially interested and if you issue share and if the shares are issued at more than the fair market value, the difference between the issue price and the fair market value will be taxable under their income from other sources in the hands of the company. कंपनी के हाथ में टैक्स लगता था, अगर शेयर प्रीमियम से ज्यादा शेयर प्रीमियम वो ज्यादा ले लो, फेयर मार्केट वैल्यू तक लो तो अलाउड है। 10 का अगर फेयर मार्केट वैल्यू 18 है, 18 रुपए ले लीजिए, कोई 20 लेंगे 25 लेंगे तो बाकी डिफरेंस पे टैक्स कंपनी पे। नीचे लिखा था वेंचर कैपिटल वेंचर अंडरटेकिंग को नहीं लगेगा, इवन उनको भी नहीं लगेगा स्टार्टअप, लेकिन लगेगा U2 में उनको करना पड़ता था, और लेकिन स्टार्टअप साथ में रजिस्टर्ड नहीं होते सर, उनका कंडीशंस है, दे शुड सैटिस्फाई द कंडीशन लेटर, और 56 to 7B है। फिर दो बात चल रही, ये आप कितना मर्जी प्रीमियम चार्ज करिए, सिर्फ 68 में ध्यान रखिए कि आपको जब कोई शेयर कैपिटल लेना है, शेयर प्रीमियम लेना है, एप्लीकेशन मनी लेना है, तो सोर्स का सोर्स बता दें, सोर्स का सोर्स दैट इज देयर 68 में है, सोर्स को तो पहले आ चुका है, वो नई चीज थोड़ी है, सोर्स का सोर्स भी बताना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज यू कैन इशू शेयर नाउ फॉर 10 रुपीस फॉर एनी अदर, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर में 50 CA अभी भी है, ट्रांसफर हैज टू बी डन एट द फेयर मार्केट वैल्यू, प्लीज नोट। लेकिन 50 में इशू ऑफ शेयर का था, now you can issue the share at any amount, no problem, face value or more than any amount of this premium जितना मर्जी लो, but be careful under section 68 you have to be very careful, source of source। ये हो गया सर, चलिए ये हमारा यहाँ भी हो गया। आगे जब हम जा रहे हैं तो उसकी चीजें जो है ना, आपकी जो बता रहे थे संजय जी चले गए, वो जो है ठीक कहा 95 में सेक्शन 130 भी इंट्रोड्यूस किया गया था, और साथ में ब्लॉक का असेसमेंट, ये 95 में कर रहे थे ब्लॉक, लेकिन वहां अनडिस्क्लोज्ड इनकम का असेसमेंट होता है, ओनली अनडिस्क्लोज्ड इनकम अंडर ब्लॉक असेसमेंट, रेस्ट इनकम अंडर नॉर्मल।
उसको चेंज कर ये 153A, 153B, 153C लाए, टेस्टेड हुआ, लेकिन कई प्रॉब्लम आई, तो फिर ये नया मर्ज कर दिया 21 में अंडर सेक्शन 148, 147, 148। रियलाइज किया, रवि जी भी बात कर रहे थे मेरे से, कि तब क्या होता था, 6 साल का केस है या 3 साल का है या 10 साल का, जो भी केस है, वो ईच ईयर का केस का नोटिस इशू करते थे। लॉ का तो 1 ईयर का करा, और वो उसका करते जो टाइम बाउंड होने जा रहा है, बाकियों को पढ़ा लेते थे, तो वो सारा पर्पज 10-10 साल लग जाते थे उसको असेसमेंट करने के। So for that reason, old wine in new bottle, chapter 14 भी already है, chapter 14 भी already है, उसको सब्स्टिट्यूट करके नया chapter 14B डाला है। वो पहले से है 158B, 115BA, 115BB, 115BC, 115BD, 115BI तक डाल दिया, ये नया चैप्टर डाला है। कह दिया है आपको टैक्स देना पड़ेगा और व्हाट, टोटल इनकम। अब अनडिस्क्लोज इनकम नहीं, टोटल इनकम जो कैलकुलेट करेंगे उस पे 60% टैक्स देंगे। ये 60% लिखा कहाँ है? यहाँ नहीं है, 113 में लिखा है, और लिखा था अनडिस्क्लोज इनकम टू बी टैक्स्ड एट 60%, वहां लिखा टोटल इनकम शुड बी टैक्स्ड एट 30%। 6 साल का 30% ब्लॉक असेसमेंट होगी, टोटल इनकम, उसमें अनडिस्क्लोज इनकम भी आएगी। प्लीज नोट टोटल इनकम, आप टोटल इनकम डिफाइन कर दिया, जो रिटर्न ऑलरेडी आपने डाल रखी है और जिसकी असेसमेंट हो गई, तो वो टोटल इनकम नहीं, बाकी आएगी। टोटल इनकम निकाल कर उसका बेनिफिट दें, पहले 60% टैक्स, ये तो हम शोर बचा के कराया। 115BEE में बिड़ा कर, क्योंकि अगर 115BEE में देखिए, if there is a search case, you have to pay tax at the rate of 60% plus surcharge plus education tax 78% plus penalty 30% if you declare at the time of search or 60% if you don't declare it. तब कितना टैक्स लगता था सर, इंक्लूडिंग पेनल्टी? 108 मिनिमम एंड 138। गए थे ईद मनाने, रोजे गले पड़ गए, कहाँ से लाएंगे 132%? उसके लिए कम कर दिया, 60 कर दिया। अभी तक तो बोला है अगर 113, 16 से पढ़ो तो सरचार्ज इफ अप्लाइड लगेगा, लेकिन अभी इन्होंने प्रॉमिस किया है कि सरचार्ज अभी नहीं लगेगा। ये भी प्रॉमिस किया 234A, 234B, 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये भी प्रॉमिस किया। ये किया है, लेकिन साथ में ये कहा है कि देखिए पेनल्टी लग सकती है अगर आपने नहीं डिक्लेयर किया अपनी रिटर्न में। कितनी? 50% और 60%। So 60 plus 30, 90 मैक्सिमम होगा, 60 plus 30। लेकिन उसके आगे लिखा है कि पेनल्टी नहीं लगेगी if you have submitted the income in the return, और उसके आपने पैसा जमा करा दिया, सोर्स बता दिया, तो हम पेनल्टी नहीं लगेगी। हाँ, उसके बाद अगर डिफरेंस आया तो पेनल्टी लगेगा। और साथ में एक और बोला है कि आपको, अगर आपको बोला गया कि रिटर्न भरिए, अगर आप रिटर्न नहीं भरते या लेट भरते, you will be liable for interest at the rate of 1.5%। ये भी बोला है, इंटरेस्ट लगेगा पर मंथ for delay in filing the return in response to a notice given under 158 BS। तो ये और 150 BCD डाला है, BD, sorry 158 BD, इनकम ऑफ अदर पर्सन। जो हम कहते हैं ना, ये मेरे यहाँ पाया गया डॉक्यूमेंट, मनी, बुलियन, ज्वेलरी विच बिलोंग्स टू अदर पर्सन और परटेन्स टू अनदर पर्सन, तो हम 153C करते थे। अब वो 115BD में आ गया, but you will be given notice under 150C, और फिर completion of assessment का बोल दिया 12 months from the end of the month in which the search is executed, 12 महीने में complete करना है। लेकिन उस केस में जब हैंडओवर होगा तो 12 months from there, minimum 6 months। ये सर्च के केसेस का है, बाकी तो बहुत कुछ संजय जी ने बता दिया, मैं सर्च करता नहीं, यही मैं तो भगवान से कहता हूँ कि भैया टैक्स दो और जान छोड़ो, लेकिन ये बैठे नहीं संजय जी और रवि जी, उनका काम ही सर्च केस करना है। मैं क्या कर सकता हूँ, करें। मैं ना, आई ऑलवेज वांट ग्रोथ फॉर देवन, आई से पे टैक्स एंड एंजॉय लाइफ। टैक्स दो, जिंदगी अपनी अच्छी बताओ, कोई फायदा नहीं है। आप उनके पास मोर इंफॉर्मेशन देन यू हैव अबाउट योरसेल्फ, उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, आई कांट टेल यू कि क्या क्या इंफॉर्मेशन वो लेके तो क्यों एक अपने आपको फंसा रहे हो। टैक्स दो और जान छुड़ाओ, यही सबसे बढ़िया है। और आपको भी कहिए, और है भी कितना टैक्स, ना वेल्थ टैक्स है, ना गिफ्ट टैक्स है,
ना राहुल गांधी टैक्स है, मतलब इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, वो आया तो आ जाएगा ना, no inheritance tax at all. So what is the tax? Only income tax, and still we don't want to give, and you get all benefit whatever is there. So tax तो देना पड़ेगा सर. ये कहते हैं तो डिपार्टमेंट के फेवर में, मैं डिपार्टमेंट के फेवर में नहीं, मैं आपके फेवर में हूँ कि अब उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब देखिए क्या करा है. अभी तो सीधे बताता हूँ, पहले आगे ले जाता 2063 है, मोटर कार में TCS कलेक्ट होता है, इवन मोर देन 10 लाख. अब कोई भी गुड्स खरीदेंगे जिनको स्पेसिफाई करने लगे, और वो 10 लाख होता है उसका भी TCS कलेक्ट करना पड़ेगा. खरीदो डायमंड का 10 लाख से ऊपर, लाइए इस पे करिए. खरीदिए LV में जाकर पर्स 12 लाख का, तो लाइए TCS कलेक्ट करिए. अब ये होने जा रहा है 10 लाख के ऊपर कोई भी आइटम खरीदी, गुड्स टू बी स्पेसिफिक, और गुड टू बी स्पेसिफिक, दे विल कलेक्ट TCS एट द रेट ऑफ 1%. ये ध्यान रखिए, 1% TCS है, जो TCS का मतलब सब इंफॉर्मेशन आप उनके पास. सो बी केयरफुल, यू हैव टू. मैं कार साहब की वजह से नहीं करेंगे कि पे टैक्स नहीं जाएगा, ये कभी कभी मैं डर गया, मैं नहीं डरता, लेकिन मैं जरूर कहता हूँ कि वक्त बदल चुका है, डिजिटलाइजेशन इकोनॉमी है, एवरीवन नोज व्हाट इज हैपनिंग, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कमिंग अप एंड नॉट पेइंग टैक्स. आगे देखिए ना, TDS भी तो कम कर दिया ना. 115, 194 DA, 194 G, 194 H, 194 IB, सबका 5% का 2% कर दिया, सबका 2 कर दिया. जो इंश्योरेंस कमीशन होती थी 5% TDS करता था, वो 2. लॉटरी कमीशन होती थी जिसमें 5% करता था, वो 2 हो गया. जो कमीशन एंड ब्रोकरेज होती थी जो 5% करता था, वो भी 2 हो गया. जो 194 IB होता था, 50,000 से ऊपर रैंक दिया, और आप इंडिविजुअल HUF है जो 194 I में कवर्ड नहीं थे, तो उसका भी 2 कर दिया. 194 M का भी बदल दिया. 194 O का जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर थे 1% का 0.1%. Purpose is they want information, and they have brought down the TDS rate from 5% to 2% in most of the cases. तो ये ध्यान रखिए कि काफी TDS का नहीं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल बच्चों को बाहर भेजते हैं, TCS कलेक्ट होता है, या गाड़ी खरीदते हैं, सैलरी वाला आदमी है, TCS कलेक्ट होता है, 10 से ऊपर खरीदी, तो TCS का क्रेडिट नहीं देता था. वो कह रहा था हम आपको इंफॉर्मेशन दें, TDS का तो क्रेडिट दे देंगे अगर वो इन्फॉर्म करो अदर इनकम के बारे में, पर TCS का क्रेडिट अलाउड नहीं था. बाय कंप्यूटिंग द टैक्स अंडर 192, वो कह रहा था नहीं, TCS नहीं, ओनली TDS है. लेकिन अब लॉ बदल दिया, अब TCS की इंफॉर्मेशन दीजिए, वो भी आपकी टोटल लायबिलिटी से कम होकर बाकी पे आप TDS करेंगे. बड़ा अच्छा, ये क्यों करा गया? मजबूरी है. 10 से ऊपर गाड़ी खरीदी, TCS है, वो कहाँ से? वो कह रहा भाई से दे, या आपने बेटे को बाहर भेजा, 1 करोड़ रुपया लग गया, जो भी लग गया, उसके ऊपर आपने 20% दिया, तो उसका बेनिफिट तो मिलता ही नहीं था. फिर रिटर्न करो, अपने इतने सालों का अपने कम से कम अपने एम्प्लॉयर को बोलो ये मेरा TCS है, इसका क्रेडिट. सो दिस हैज बीन डन अंडर 192. अदर देन सैलरी में पहले ही अलाउड था सर. सैलरी में 192 की वजह से था, बाकी तो सारा TCS क्रेडिट मिलता ही है. आपको क्या मिलता नहीं है क्रेडिट सर? आपने बाद में मिलता है, तो पहले तो एडवांस टैक्स में आप एडजस्ट तो कर लिया उसको. मैं तो एडवांस टैक्स देता नहीं. अगर मैंने कोई बाहर भेजना है पैसा, तो उतना पैसा मैं एडवांस टैक्स कम कर देता हूँ. तो कहाँ नहीं मिलता है? मिलता है वो तो. सर यू एडवांस टैक्स कम करिए ना. You are going to get the credit of TDS and TCS, and then you calculate your tax on the basis of after the deduction. ऐसा नहीं है सर. सिर्फ इनको प्रॉब्लम थी, सैलरी वाले आदमी थे बेचारे, पैसे दान बहुत देते थे, जो भी है, उनको प्रॉब्लम आती थी. 194 TCS का क्रेडिट नहीं मिलता था. अब वो अपने एम्प्लॉयर को अगर दे देंगे, तो एम्प्लॉयर उसका बेनिफिट TCS का भी दे देगा along with TDS, and they will deduct the tax after giving the credit. It is a good idea, it's not a bad thing. It's very good. They are not going to suffer or pays out the broccoli. जितना क्लियर है सर. ये मैंने TDS के बारे में बताया. एक और पॉइंट था, मैं भूल गया कहना, वो 112A में ही था कि आजकल ट्रस्टों में बहुत गलतियां हो रही हैं. कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई अप्लाई नहीं करा रजिस्ट्रेशन वगैरह. तो अब उन्होंने एक प्रोविजन दे दिया, कंडोनेशन ऑफ डिले परमानेंट. 119(2)B में जाइए, आप कंडोनेशन ऑफ डिले कर.
ये हो सकता है। अगर कंडोनेशन डिले हो गया तो आपको वो 139(9)(a आती है कि वो कंडोनेशन डिले में ये मानी जाएगी रिटर्न अंडर 139 है। ये डाला, प्लीज रीड अंडर 12A प्रोवाइजो डाला और इधर 139A में उसको कंप्लीट कर दिया कि वो माना जाएगा, आप उसको ले सकते हैं। ये अनदर बेनिफिट जो आपको दिया गया। अब ये 21 में तो आया था रीअसेसमेंट, अभी तक तो सेटल भी नहीं हुआ ये लोग, फिर बदल दिया, लेकिन अब सर्च को तो अलग कर दिया, लेकिन इसके लिए पहले 3 मंथ्स और 6 ईयर था, लेकिन 3 मंथ्स नहीं था, 3 मंथ्स नहीं था, 3 मंथ्स होता था जो 15 मार्च के बाद अगर हो तो उस केस में उन्होंने कहा था कि 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम देगा। अब उन्होंने सीधा यही कर दिया 148 में, 149 में, 3 years and 3 months they can open reassessment कर सकते हैं, and 6 years and 3 months if it is more than 50 lakh and it presents some income, some revenue, some entry, वो उन्होंने कर दिया। So उसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। 148A जो था ना, उसमें होता था क्लॉज A, B, C, D। 148A में नहीं था ना, पहले वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, फिर आपको शो कॉज देगा, फिर शो कॉज का जवाब देंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर पास करेगा 148A, D। अब ये 148 के बाद A, B, C, D तंग कर रहा था, तो 148A सब सेक्शन 1 कर दिया, A, B, C नहीं किया, कर दिया और 1 में मर्ज कर दिया। कोई कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन उसके पास है which suggests the income has escaped assessment. The information will be provided to him by the risk management strategy. He has the information which suggests the income has escaped assessment. वो आपको नोटिस देगा, opportunity of being heard देगा, पहले दे देगा, फिर डिसाइड करेगा कि ये है कि नहीं। अगर है रीसेट तो फिर आपको वो आपका जवाब लेकर आपको ऑर्डर पास कर देगा। अगर वो मान जाता है कि नहीं देयर इज नथिंग लाइक दैट तो ठीक है, वो ड्रॉप कर देगा। सो ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन पॉइंट ये है अब कंडक्टिंग ऑफ इंक्वायरी, अब तो स्टेट अवे information which suggests he has an information in possession which suggests that income is escaped assessment, he will issue a notice to you to appear and communication करो तो to appear before him और आपकी opportunity of being heard के बाद he will take a decision। पहले कहेगा शो पास दे रहा हूँ, तो जवाब दीजिए, उसके बाद वो ऑर्डर पास कर देगा and then you will go to 148 for issue your notice and then with same बाकी प्रोसीजर। सिर्फ सेक्शन बदले, चीज बेसिकली यही है जो मैंने और वो सब हटा दिए गए। सर्च के केस में कोई भी सर्च के केस में कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, वो तो पहले उधर आ रहे हैं तो इधर की अब जरूरत नहीं है। सो जो बेसिकली था इनकम भी सजेस्ट दैट इट हैज एस्केप्ड असेसमेंट, उसमें सर्च पर को डालने की जरूरत नहीं, वो तो डीप केस था, वो तो उधर चले गए, इसलिए वहां पर ये चेंज आई जो मैंने आपको बोला। अब एक और प्रॉब्लम आती थी 206C में 1% इंटरेस्ट था अगर आप टीसीएस काट के जमा ना करें। टीडीएस में टीडीएस काट के अगर जमा नहीं कराए तो 1.5%। Am I right or no? We have not deducted 1%. We have deducted and not deposited 1.5% per month. टीसीएस में अभी भी 1%, उसको इन्होंने 1.5% level playing field कर दिया। Even in TCS if you don't collect, you collect and after collection you don't deposit। सबसे बड़ा मुझे जो अच्छा लगा वो 276B डिक्रिमिनलाइजेशन, वो जो प्रोसिक्यूशन हुआ करता था टीडीएस लेट जमा कराने, गलती तो हमारी थी। कोई जमाना था 12 महीने तक अलाउड होता था कि अगर 12 महीने में जमा करा दे तो लोगों ने क्या किया, 12 महीने के बाद पहले ही जमा कराते ही नहीं, तो इंटरेस्ट ही पड़ेगा ना, बैंक से लेने से अच्छा है इनका पैसा यूज कर, तो ये करा। तब इन्होंने डेट कर दिया इवन 1 day डिले प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दिया, इवन 1 day डिले 10 days डिले प्रोसिक्यूशन हो रहा है और कंपाउंडिंग करवाइए और कंपाउंडिंग में प्रिंसिपल अमाउंट को भी नहीं, तो ये वाले पॉइंट आ रहे थे। अब क्या किया, अगर जो क्वार्टरली रिटर्न जाते हैं जून की 1 महीने में जाती है, फिर सितंबर के 1 महीने में जाती है, दिसंबर के 1 महीने में जाती है और मार्च की जून 2 महीने में जाती है, अगर उस तारीख तक आप टीडीएस जमा करा देंगे तो इन दैट केस प्रोसिक्यूशन विल नॉट बी लास्ट। अदरवाइज तो मिनिमम 3 months प्रोसिक्यूशन क्या था जेल और 7 साल की जेल प्लस फाइन। चलो 3 महीने भी, अगर पैसा आपने गलती से नहीं काटा 1 day डिले 2 days डिले 1 double डिले, आप जो क्वार्टर खत्म होता है उसके टाइम, उसकी रिटर्न भरने का जो टाइम है 30 days, उतने देर जमा करा देंगे तो हम आपको प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे। इट इज ए गुड प्रपोजल। चलो 3 महीने दिए ना,
2 महीने भी दिए, 1 महीना भी दिया, सारे नहीं है 3 महीने, मैक्सिमम 3, मिनिमम 1, वो तो दिया आपको. So you can have a benefit of that you will not be prosecuted, means a client will not be prosecuted, and you will not have to go for compounding if the TDS has been deducted and deposited by that date. Clear sir? ये भी आ गया. अब और कौन कौन सा प्रोविजन रहेगा मेरे को ध्यान नहीं, दो चार बताओ मुझे. हाँ, वो तो 12 सेक्शन डाल दिए, वो बिल्कुल वही वाला है जो पहले वाला, रीइंट्रोड्यूस कर दिया. विश्वास क्या था? विवाद से विश्वास. पर्पस वही है, पहले इनकम टैक्स में किया था, फिर जीएसटी में किया था, फिर इनकम टैक्स में दोबारा लाने जा रहे हैं. वो अमेंडमेंट है, 12 अमेंडमेंट है, वो उन्होंने डाल दिया. विवाद से विश्वास प्रोसीजरली वो सेम है जो हम करा करते थे. टैक्स एरियर, फिर उसमें इंटरेस्ट होता था, पेनल्टी होती थी, सब वो बिल्कुल वैसे ही है. आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, अब तो वैसे ही पढ़ना ही पड़ता है, बगैर पढ़े तो काम होता नहीं. जब से फेसलेस हो गया पढ़ना ज़्यादा पड़ता है. हाँ, आइए 40B बहुत सा बिना कनेक्ट किया है, ये ऐसे ही बोलते जा रहे हैं. 40B देखिए सर, ऐसा है, कुछ भी तो नहीं किया. मैं ये सोच रहा था न्यू रिजीम आएगी पार्टनरशिप, बाकी सबकी न्यू रिजीम आ चुकी है. कंपनी की आ चुकी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की आ चुकी है, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सबकी न्यू रिजीम है. तो पार्टनरशिप की क्यों नहीं है? उसको भी कर दीजिए, 30 का 25 कर दीजिए, करो तो सही कुछ. बिकॉज डोंट गिव देम डिडक्शन. देयर इज ओनली वन पार्टनरशिप इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स LLP वेयर देयर इज नो रिजीम. वो रिजीम नहीं है, वो वही है ओल्ड रिजीम 30%. लेकिन एक काम कर दिया 40B में, जो आप सैलरी देते थे, जो आप इंटरेस्ट देते थे, एज पर पार्टनरशिप डीड अलाउड है, पता इंटरेस्ट 12%, सैलरी आपको अलाउड है कि क्या है. उस केस में फर्स्ट 6 लाख, पहले 3 का 90% और 150 whichever मोर होता था, अब उसको फर्स्ट 6 लाख 90% और 3 लाख whichever मोर सैलरी अलाउड होगी, और बाकी बैलेंस का 60% अलाउड. ये तो है, लेकिन आपको सैलरी हर महीने लेनी पड़ेगी. ये तो किस तरह आप, वो अरुण जी बता रहे थे, हर महीने लोग ग्राइंड करते रहते हैं और सैलरी बाद साल के अंत में डाल देते हैं. अब आपको 194T में TDS काटना है at the time of payment or credit whichever is. बार मैं कहता था, लेकिन पार्टनरशिप पर और इंडिविजुअल तो एक ही बात, पार्टनर एक ही बात. पहले 45(3) में बदला, 45(4) में बदला कि दोनों अलग अलग हैं डिस्ट्रीब्यूशन में भी. अब यहाँ भी कह दिया अलग अलग तो है, हम मानते हैं एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए 192 नहीं डाल रहे, 194T में आपको TDS काटना पड़ेगा एट द रेट. सो एवरी फर्म और LLP who make payment of salary to the partner or interest to the partner will have to deduct the TDS at the rate of 10% under 194T. 20,000 से ज़्यादा नहीं देते लोग, ऐसा करना है कि 20,000 वाली बात, वो TDS काटना. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वर्क की डेफिनेशन है. उस वर्क की डेफिनेशन में एक एक्सप्रेशन है कि भाई अगर आप किसी का माल बना रहे हो अकॉर्डिंग टू हिज स्पेसिफिकेशन, वो दैट, और वो वर्क नहीं. एक और डाल, अगर आपकी कोई ऐसी चीज है जो 194J1 में आती है, 194J1, वो 194C का TDS नहीं कर सकता, और 194J में ही करेगा. क्या करते? फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में तो 2% है, लेकिन बाकी में तो 10% है. कंसल्टेंसी की 10%, वो 194J में 194C में 1% या 2% काटते हैं. उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो भी TDS 194J में कटेगा, 1 है जो कवर्ड होता है एक्ट में, उसका 194J एप्लीकेबल होगा, 194C एप्लीकेबल नहीं होगा. ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया. ये क्या रखा. और कौन सा सर? अपील तो बहुत हुई, लोग जानकर 144 करा लेते थे कि भाई 144 करा लो, अपील ही ना हो. और फिर कमिश्नर अपील, तो हम कमिश्नर अपील के पास चले जाएंगे, और कमिश्नर अपील असेसिंग ऑफिसर बन जाता है, और वही असेसमेंट करेगा. बात समझ गए मैं नहीं? तो अब क्या है, अगर 144 में गए हो और कमिश्नर अपील के पास गए उसके बाद, तो उस केस में ही में सेट असाइड द केस एंड गिव इट बैक टू द असेसिंग ऑफिसर. पहले तो ऐसा नहीं था, सेट असाइड कर ही नहीं सकता था. सेट असाइड ITAT करता था, को हाई कोर्ट करता था. सेट असाइड अपील, कमिश्नर अपील अलाउड नहीं था. नाउ कमिश्नर अपील कैन सेट असाइड दिस टाइप ऑफ केस व्हिच हैड बीन असेस्ड अंडर 140.
और 15253 में वो जो पेनल्टी लगी अंडर ब्लॉक असेसमेंट, उसकी भी अपील फाइल करने के लिए 253 में उस सेक्शन को कोट कर दिया, 150 करके कोट कर, और कुछ नहीं कर। और कोई यही बता दो सर, अभी पहला लेक्चर दिया तो कोई एक आध चीज भूल भी सकता हूँ, कागज है नहीं। 55 डबल ए डाला था सेक्शन, वही वाला है 2018 से पहले आपको अलाउड था, आपने शेयर इशू किए अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ लाने के लिए, करते प्री आईपीओ इशू, वो आपने शेयर इशू किए, वो शेयर ले लिए, लेकिन वो एक जो नोटिफिकेशन था उसमें कुछ डिफेक्टिव लोगों ने समझ लिया कि ये मार्केट वैल्यू आप 31 जनवरी 2018 की ले सकते, ये ले सकते। अब उन्होंने क्लियर कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव से कह दिया यू आर नॉट अलाउड टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दैट 31st डे, जो आपकी परचेज प्राइस है। लेकिन उस वक्त इशू ऑफ शेयर में याद रखिए 56(2)(10) लगता था, 56(2)(7) भी लगता था, अब इशू ऑफ शेयर में 56(2)(7) भी नहीं लगेगा, उस वक्त था। तो इशू में आप इशू जो शेयर इशू किए आप मार्केट वैल्यू लेना चाहते हैं ना, बस यही तो फर्क, और तो कोई फर्क नहीं है। वो आपको कहते हैं मार्केट वैल्यू मिल जाए 31 जनवरी, क्योंकि मुझे पहले का इशू किया 10 साल पहले, 12 साल बाकियों को मिल रहा है, वो लिस्टेड कंपनी के शेयर को मिला था ना, क्योंकि हमने 1038 हटाया था। आई रिमेंबर 1038 हटा था कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर, तो उसके लिए हमने बेनिफिट दे दिया कि पुराने वालों को ग्रैंड फादरिंग कर दो कि जो शेयर की वैल्यू 31 जनवरी 2018 की हो गई वो ले लो ताकि पुराना टैक्स ना देना। ग्रैंड फादरिंग नहीं थी, दैट ग्रैंड फादरिंग वाज नॉट फॉर दिस। और मैं तो पहले से कह रहा था, हमारी अपनी किसी ने किया था, वो कह रहे नहीं मुझे तो बोला गया है कि आप ये मार्केट वैल्यू ले सकते, याद है ना, हम दोनों बैठे थे, मैंने कहा मैं तो ख्याल से नहीं ले सकता, और वही हुआ नहीं। वो लोग कहते आप ही ने कराया, हर आदमी मेरे को ही कह देते आपने कराया, हर मैंने कुछ नहीं कराया सर, उनको भी पता है क्या क्या होता है, तो ये चीज भी हुई सर, फिर भी देख लूंगा मैं। अब आपके बहुत टेक्निकल बात है, यूनिट और वो है, लेट मी चेकअप एंड गेट बैक टू कर रहे। अब आपके पास हो जाती है ऊपर रहेगा सेक्शन, सर मैं भूल भी सकता हूँ, इतनी देर कल रात को तो आया 3 बजे रात को सोया, वो कहते हैं आपका चेहरा थोड़ा नीचे गिरा हुआ है, तो क्या करूँ, सोया कहाँ बोलो। जैसे कि सच का है 1 जुलाई से है, कुछ 1 अक्टूबर से है, कुछ पहली 25% के सफर में, जितने भी प्रोविजन टीडीएस के होते हैं वो एक डेट से, फर्स्ट अक्टूबर से, वो फर्स्ट प्रोसीजरल मैटर हमेशा बात को, लेकिन ये दे देना बेनिफिट कि जो कैपिटल गेन कमा चुके हो 23 जुलाई से पहले वाले, तो ये बेनिफिट दिया है सर, अदरवाइज तो असेसमेंट ईयर 25-26 का एक ही है। लेकिन मुसीबत आना पड़ गई किताब लिखने में कि 2 रुपये कैसे निकालेंगे, रिवॉर्ड घटेगा, ये होगा, ये आदमी वो होगा, वो है। लेकिन मैं पॉइंट ये है कि उन्होंने वो बेनिफिट आपको दे दिया, 15% वाला भी दे दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ 2 दिन पहले मैं शेयर बेच रहा था, बेचे क्यों नहीं, 2.5% खर्च हो। तो माय पॉइंट इज जो है वो वाला पॉइंट आपको बेनिफिट उन्होंने दे दिया 23 जुलाई से पहले, वो वाला दे दिया, और किसी की जरूरत नहीं थी तो वो नहीं दिया। और कोई पॉइंट है सर, अब क्वेश्चन 5 मिनट मिल रहे हैं, ओ सॉरी, माय अपॉलॉजी, टैक्स गुरु इज हियर, अब इनडायरेक्ट टैक्स वो बोलेंगे और मुझे तो एक लेक्चर देने जाना है, तो मैं उनका 2 मिनट सुनते हाथ जोड़कर विनती है मुझे जाने देना, और आपके मैं भूल गया सर, मैंने देखा ही याद नहीं आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इनफैक्ट सभी मेंबर्स को वॉइस ऑफ सीए की तरफ से हम लोगों ने एक ईमेल भी फ्लोट करा है कल रात को 12 बजे, वेयर वी हैव गिवन अ डिटेल्ड एनालिसिस और डीटी आईडीटी क्लॉज वाइज विद द ब्लेसिंग ऑफ आवर मेंटर्स, तो वो भी आप देख सकते हैं। Moving on, I would now request
GST Guru and our mentor of Voice of CA, CA Ashok Batra sir, for his deliberation on A to Z of indirect taxes. Good afternoon, friends. There was a time when myself and Guruji used to deliberate on the budget session. So the organizers used to make it a point that Mr. Batra speaks first so that people will stay there. And when GST came, there was a time when Guruji की भाषा में हमारी दुकान ज़्यादा चलती थी. But anyway, still we had a good audience left, so I think now people are interested in GST more. Anyway, friends, अगर 110 क्लॉज डायरेक्ट टैक्सेस की आई तो 110 से 153 43 क्लॉजेस जीएसटी में भी आई, लेकिन उन जीएसटी क्लॉजेस में 17 क्लॉजेस सिर्फ कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है बिकॉज ऑफ द न्यू प्रोविजन 74A बीइंग इंसर्टेड. कुछ क्लॉजेस कॉन्सिक्वेंशियल है बिकॉज जो अमेंडमेंट सीजीएसटी एक्ट में की है वो आईजीएसटी एक्ट में और स्टेट में भी की है. So now I'll go clause by clause and we will discuss it. Any question you can ask in between also. Friends, पहले they intend to change charging section 9 of CGST corresponding section 5 and 7A of IGST and SGST also. Denatured ENA and rectified spirit used in the manufacture of alcoholic liquor for human consumption is outside the scope of GST when this action will be notified. There have been a lot more litigation on this, but it has another implication, and that is on the availment of ITC in case you are dealing in that product and that has become non-GST supply. So obviously you have to apportion your ITC in terms of section 17(1) and 72. Friends, another amendment has been done. In my humble opinion, that amendment is being proposed to look at the lottery industry, insurance industry, because in those two industries there have been a lot more demands which is being created, and because of industrial practice they have never collected tax. So on the line of section 11C of Central Excise Act and section 28A capital of the Custom Act, they intend to propose a section 11 capital A, wherein the government has got a power to regularize the non-payment of GST or short payment of GST if you have not collected because of any practice in the trade. We all know the lottery business, 10,000 crore demand is being proposed. They have not collected the tax because of industrial practice. I think there is some compromise formula which is coming in the government consideration of the government. So therefore they have introduced the section 11 capital A, and corresponding amendment has been made by introducing section 6 capital A, 8 capital A in IGST and UTGST also. Then friends, another important amendment is in section 13 which deal with the time of supply. I will deal this amendment along with 31(1)(f) also. When you are liable to pay tax under reverse charge, you are supposed to issue the invoice. But in that case, there was no time limit being prescribed. So far as supplier was concerned, you were supposed to pay the tax after 60 days from the date of invoice in the case of services and 30 days in the case of goods. Now they say the date of invoice will be the date when you are supposed to discharge the liability. For that purpose, section 13 and 31(1)(f) has been amended. कोई ऐसा फाइनेंस बिल नहीं आ सकता जिसमें आईटीसी के इश्यूज ना डिस्कस हो या इफेक्ट ना हो. इसी तरह से सेक्शन 16 जिसके सिर्फ 4 सबसेक्शन थे, 16(4) has been subject matter of litigation before various high courts, and now most of the high courts have upheld the constitutional validity of section 16(4). That's a different issue. Whether there is a violation of 16(4) and 16(4) is when I claim the credit in my books of accounts or I report into 3B. I'm not going into that. Look into the time constraint also because I have to deal all the amendments. So section 15 and section 16 subsection 5 and 16 is being inserted.
Section 16 subsection 5 is practically amnesty scheme, wherein if you have claimed the credit for the year 17-18, 1st July 17 to 31st March, 18-19 and 19-20, then the 16-4 time limit will be 30th November 2021. So wherever the show cause notice by the states 16-4 issue has been raised and you have filed the appeal against that, in my humble opinion, you can certainly contest it, and when you are appearing before them, either seek the adjournment, because once the section will be notified, then it is part of the statute itself. It's not a circular notification. So everybody is duty bound by that. So you are likely to get huge benefit in this in case you are already litigating it. Then friends, section 16 subsection 6 is there. There was a technical point. Once my RC is being cancelled, I file an application for revocation of cancellation certificate under section 30. And my revocation order comes, let us say, 9 months back or 8 months thereafter. So I filed the return subsequent to that because my RC was cancelled, I was not able to file the return. So my ITC was foregone. I could not have claimed that ITC because the time limit of 16.4 has gone. Now they have inserted this subsection 6, very clearly specifying that in case your RC is being cancelled and is being restored, if you file your returns for the intervening period within 30 days from the date of revocation of cancellation, इसमें दो टर्म्स हैं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे. एक रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको सारा क्रेडिट मिल जाएगा, provided that credit has not become time barred on the date of order of cancellation, not order of revocation of cancellation. This difference need to be kept in mind. So in case that is being done, your crediting is restored. So in case you have not contravened 16.4 as on the date when your RC was cancelled by the department and has been revoked subsequently, and you file the return within 30 days, you will get the credit. Then comes section 17.5, which is a block credit. So block credit में लिखा हुआ था कि आप you will not be eligible for ITC in clause I in case that credit has been because of show cause notice under section 74, 120 and 130. So reference to 120 and 130, which was only academic, not practical, has been deleted, and a period up to 23-24 has been stated simply for the reason because this section is going to be unoperational with effect from 1st April 24, because 24-25 we are going to have a new section 74 capital A. Right. After 17, we can go to section 30 when revocation of cancellation. If you look at the various High Court judgment, most of the judgment, even on 19(1)(g) and etc., they have been asking the department restore the registration. Now they are going to give it a statutory backing by exerting subsection 2, wherein they can prescribe the terms and conditions under which the revocation can be done. Revocation. So it is very important to present. 31(3)(f), I have already dealt with 30. Now we can go to next section, which is 39 subsection 3. When I am deducting TDS, I am supposed to file the return. But as per the existing provision, the return was to be filed only when there was a deduction in that particular month. Now they have amended that section. They say even if there is no deduction, you have to file TDS returns every month, irrespective of the fact whether there is a deduction or not. After this 39, a lacuna has been clubbed in the case of refund, section 54. Two amendments have been proposed in subsection 3 and new subsection 15 is being inserted. Earlier on, when I was exporting the goods, I cannot claim the credit of ITC if those goods are subject to export duty. But there was a lacuna. In case I export those goods with full payment of tax, there was no bar. So now they have put up subsection 15, wherein 3 is being amended, and with effect from the day when the section will be notified, there will be no refund with respect to the goods which are subject to export duty, because they are demerit goods. The government doesn't want, कई बार प्याज पे लगा देते हैं, कई बार उस पे लगाते हैं, कई बार टैक्सेबल आइटम पे लगा देते हैं. तो उनका जिस आइटम पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, उस पे ना तो आपको ITC का रिफंड मिलेगा
और ना आपको IGST का रिफंड मिलेगा अगर आपने उसको विद पेमेंट ऑफ टैक्स भी किया है तो। After 54 section 70, I will say it's a big relief for most of us, क्योंकि जब भी वो सम्मन देते थे तो सम्मन में MD का नाम, की पर्सनल का नाम होता था, जो जाने में डरता था। वैसे can I send my authorized representative? Now they are proposing a section which is to be inserted in section 70, and you can appoint any authorized representative on your behalf to give a statement. Of course, that authorization has to be coupled with the power attorney, etc. So that is a big relief, and the department knew it. These officers are doing money, and then therefore this section has been proposed. After this, a very major change, section 74. Section 73 and section 74, these two sections were there under which show cause notice can be issued. And show cause notice can be issued only under four situations. Number one, non-payment of tax, short payment of tax, erroneous claim of refund, a wrong availment or utilization of credit. इसको बहुत ध्यान से सुनना है because it will have lot of implication on your practical practice also. So now they say there will be no distinction. We will remove 73. 73 was there when all these four conditions were without fraud, willful misstatement and suppression. 74 was there when these four conditions were there with fraud, willful misstatement or suppression. Now 74 capital A, for any reason if you have not paid the tax, they can serve you a show cause notice, and the time period is 42 months from the due date of filing the annual return. Due date, not the actual date, due date of filing the annual return. If that is being extended, then the period will get extended also. So it is due date of filing the return on which this can be done. Now you can say that means the person who has not paid the tax fraudulently or the person who has paid the tax because of bona fide belief, both are being at the same place. No, that is not there. अभी भी उन्होंने ये कहा कि अगर आपने फ्रॉड, विलफुल स्टेटमेंट और सप्रेशन का एलिमेंट डिपार्टमेंट नहीं प्रूव करता है तो आपकी जो पेनल्टी है वो 100% of the tax ought to be evaded. In the case of where the department doesn't prove it, then it is only 10% of the tax. Another important change which is good for our profession also, after this 42 months, now the adjudicating authority, which has got only 3 months in the case of 73 and 6 months in the case of 74 to pass the order, now they have given 12 months to the adjudicating authority to pass the order. अभी आपने देखा 17-18 के ऑर्डर आए 3 महीने में, पहले लास्ट डेट्स पे शो कॉज नोटिस आए, विद इन 3 मंथ्स उसने एडजुडिकेट किया, तो जैसे एडजुडिकेट विद इन 3 मंथ अपील हो गई. सो दैट मींस there was a lot of action to be taken by you, by the officer also, and everybody was in a pressure. So now they have given 12 months to pass the order, and in case the officer doesn't able to pass the order within 12 months, that period can further be extended by another 6 months with the approval of the higher authority. It cannot be less than joint commissioner. So that means अब 73-74 पर डिस्टिंक्शन नहीं रही. शो कॉज नोटिस आपको होगा 42 months from the due date of filing the annual return. 12 महीने 54 और 6 महीने तक extension. So that means within 5 years, your adjudication order will be in your hand. Unlike in the past pre-GST era, when there was no time limit for the passing of adjudication order, and of course the court have held very heavily on the department because in some of the cases those orders are passed after 12 years. They said that if there is no time limit, you have to be reasonable. तो जहाँ कहीं भी 10 साल के बाद adjudication order पास हुए थे, उन orders को delete कर दिया गया. तो ये 74(1) जो section आया है 74A, इसके अंदर 12 सब section है. They are all replica of 73 and 74. Whatever changes were there, I have already told you. So these are the time limit changes. Penalty position वही है. अगर आपने element fraud का नहीं किया तो आपने before show cause या within 30 days पहले पेमेंट थी और उसको बढ़ा दिया इन्होंने within 60 days. अगर आप पेमेंट टैक्स और इंटरेस्ट कर देते हैं तो नो पेनल्टी, और अगर नहीं करते हैं और फ्रॉड एलिमेंट नहीं है तो 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 whichever is higher,
74 में भी वही पेनल्टी प्रोविजंस है, 15% बिफोर शो कॉज नोटिस, 25% if you pay the tax within 60 days, barring the extension of period, rest is same. 50% if you pay the tax and interest within 30 days after the adjudication order, and finally 100%. So penalty provisions are same, but the quantum of penalty, you have to look at it and you have to prove, because the department has to prove the element of fraud, etc. If they fail to do so, then the amount of penalty will be only 10%, failing which the penalty will be 100%. That is the important change which you have to see. Then after 74, 75 2A is also being proposed to be inserted. I am sure जो भी GST की प्रैक्टिस करते हैं या करना चाहते हैं, उनको सेक्शन 75 और 126 जरूर पढ़ना चाहिए, वो जनरल प्रिंसिपल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। इसमें वो सारे उन्होंने प्रिंसिपल फॉलो किए जो पुराने पीरियड में प्री जीएसटी इरा में सब्जेक्ट टू लिटिगेशन थे और सुप्रीम कोर्ट के बाद डिपार्टमेंट ने जिनको एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आई एम सेइंग व्हाट इज द चेंज इन दिस फाइनेंस बिल। 75 टू कैपिटल ए इज प्रपोज्ड टू बी इंसर्टेड। डिपार्टमेंट ने आपको पेनल्टी लगा दी 100%, आप अपील में गए, डिपार्टमेंट ने जो पेनल्टी लगाई गलत है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रूव फ्रॉड एक्सेट्रा, then 75 2A says if that is in the order, then the amount of penalty is also to be re-quantified and it will get reduced to only 10%. So for that purpose 75 2A is being inserted. After 75, now we can go to section 107 and 112, both can be taken together, because 107 deal with the appeal to the commissioner and 112 deals with the appeal to the tribunal. दोनों में एक कॉमन चेंज, द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट वेयर द मैक्सिमम अमाउंट वाज अप टू 25 crore अंडर CGST, 25 अंडर SGST, so 50 crore was the maximum amount that has been reduced to 40. अगर हम बात 112 की करें जहां अपील टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल है, तो उसमें दो और अमेंडमेंट हुई है। एक अमेंडमेंट ये हुई है कि जब डिपार्टमेंट की अपील फाइल होती थी, दे वर गेटिंग 6 month पीरियड, हमें 3 महीने का पीरियड था, with a power to the tribunal to condone the period for another 3 months. तो 6 महीने में हमें अपील फाइल करनी होती थी, अब उस 6 महीने को उन्होंने 9 महीने कर दिया। तो 6 month डिपार्टमेंट की अपील है और 3 महीने ट्रिब्यूनल को पावर है टू कंडोन। So in the case of departmental appeal before the tribunal, it can be into 9 months. और तीसरी जो उन्होंने चेंज की with regard to 112, वहां भी प्री डिपॉजिट आपका 20% ऑफ द टैक्स, मान लीजिए आपकी 100 रुपए की डिमांड निकली, कमिश्नर अपील पे 10% जमा कराएंगे, इन एडिशन टू 10% आपको 20% और जमा कराना था। अब उन्होंने कहा 20% नहीं, आपसे 10% ही जमा कराएंगे, which according to me is a very very big relief. Now the amount of pre-deposit is only 10% of the tax before both the authorities, in before the commissioner appeal also and before the appellate tribunal also. So these 3 changes. Then I can come to section 109, which is again an important change, and I'll take 171 section along with this. 109 deals with the power has been taken by the government to authorize appellate tribunal to act as a anti-profiteering authority. उन्होंने एक और पावर भी ले ली कि where whatever cases can be decided by the principal bench that can be stated by the government. इन दो पावर के अलावा तीसरा उन्होंने कहा कि एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के जो केसेस हैं वो सिर्फ प्रिंसिपल बेंच सुनेगी। और 171 में चेंजेस प्रपोज कर दी कि they will fix up a date after that एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी will not accept any application, और explanation में define कर दिया what is explanation. That means wherever you are not passed on the ITC or reduction in the tax rate to the EC. So I see it is a sunset clause and likely to be over. 171 will have a very limited shelf life according to my understanding and according to the proposal which are being made in the finance bill. After this, we can move to another section 122 1B, which deals with the penalty. That penalty was economic commerce operator, and that penalty was leviable if they permit any unregistered person to do business on their platform, if they permit any person to make interstate sale where he is not permitted to do so, or where they give a wrong statement, and the amount of penalty was 10,000 rupees or the amount of tax involved. That was the existing provision applicable to all economic operators. So they said
if we are not subject to deduction of TDS, why these provisions are applicable to us? So now it is being rectified from the day when the section was being originated. It is again a retrospective amendment, and they clearly provided only those economic commerce operator who were supposed to deduct tax under section 52, they shall alone be responsible for it. Now, विवाद से विश्वास तक तो क्या आएगी या नहीं आएगी इनकम टैक्स में जो आया वो आपने देखा. हमारे यहाँ एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया परमानेंटली 128 कैपिटल A. It is proposed to be inserted and it is practically an amnesty scheme for the period 1st July 2017 to 31st March 2020. यानी 17, 18, 19, 19, 20 के लिए amnesty scheme. तीन सिचुएशन उन्होंने एनालाइज किए. सिचुएशन नंबर 1 where the show cause notice has been issued but no order has been passed. Situation number 2 where show cause notice has been issued, order has been passed under section 73 but no order has been passed by the Commissioner Appeal under section 107. Third situation where show cause notice has also been adjudicated. Appeal, Commissioner Appeal has also passed the order, but that order is pending before the tribunal under section 130. इन तीन सिचुएशन में उन्होंने कहा कि अगर आप अपना टैक्स जमा करवा देते हैं बाय स्पेसिफाइड डेट, प्रेस में उसकी डेट 31 मार्च 2025 थी जब 53rd जीएसटी काउंसिल आई, बट इस फाइनेंस एक्ट में वो डेट नहीं मेंशन की गई है. इफ यू पे द टैक्स विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इन द केस ऑफ अपील और एडजुडिकेशन, देन देयर विल बी नो एक्शन and the case is deemed to have been concluded and there will be no interest and penalty. So the waiver is for the purpose of the scheme. The waiver is interest and penalties. Tax has to be paid fully. Tax में कोई concession नहीं दिया. अब उन्होंने कहा जी नोटिस 74 में इशू कर दिया, आप 73 की बात कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट फ्रॉड का एलिमेंट प्रूव नहीं कर पाया. तो आपने सर्कुलर में भी कहा कि दैट विल बी ट्रीटेड एज अ नोटिस अंडर सेक्शन 73. तो उन्होंने कहा कि उन सब केसेस में भी वो एलिजिबल होंगे जहां नोटिस 74 में हुआ एंड डिपार्टमेंट हैज नॉट बीन एबल टू प्रूव द एलिमेंट ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन. एम आई क्लियर? थर्ड, उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी अपील पेंडिंग है तो यू हैव टू विथड्रॉ द अपील. चौथा, उन्होंने ये कहा कि अगर आप इस स्कीम में जाते हैं तो आप अपील नहीं लाई करेगी. उन्होंने ये भी कह दिया कि ये स्कीम इरोनियस रिफंड वाले शो कॉज नोटिस में नहीं लगेगी. और सबसे खतरनाक बात ये कह दी कि जिन लोगों ने इंटरेस्ट पेनल्टी जमा करा दी घबरा के और लिटिगेट नहीं किया, उनको वो रिफंड नहीं मिलेगा. एम आई क्लियर? सो इन नटशेल दिस इज द स्कीम. यू जस्ट सिट डाउन एंड डिसाइड wherever you want to go for it, wherever there are appeal, you have to withdraw the appeal and file the declaration. That declaration get to be notified. We will see when the declaration will come. Abhi koi declaration आई नहीं है. After this 128, there is one amendment in 147 that was only to improve the language of the section. Transitional credit में ISD का credit transfer होता था if the invoices are being received on and after the date of implementation of GST. So there was a question, if the invoices have been received prior to the date of implementation of GST, what will happen? So they have clarified now whether the invoice has been received prior, on or after. If you are eligible to transitional credit for the ISD, you can still take that benefit. After this amendment in section 140, I have already dealt with 171. Then there are two changes in Schedule 3. Schedule 3, we all know, deals with the supplies which are neither being treated as a goods or a services, as a result of which no tax can be levied. And in case you look at the proposed amendment, they intend to insert two paras, para 8 and 9 into that. In the case of co-insurance, दो आदमी मिले, risk element was huge. तो उसने कहा भाई ठीक है हम दोनों मिलकर इंश्योरेंस करते हैं. तो उन्होंने कहा कि अगर को इंश्योरेंस ने पूरे प्रीमियम पे लीड, को इंश्योरेंस में एक लीड इंश्योरेंस होगा, एक सपोर्टिंग होगा, तो लीड इंश्योरेंस ने अगर पूरे अमाउंट में टैक्स जमा करा दिया तो
जो सपोर्टिंग इंश्योरर है उसको टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कराता है तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा. सो ओनली ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज. एंड दे हैव वेरी क्लियरली स्टेटेड in Schedule 3 also, the service provided by the co-insurer to the lead insurer will not be treated as the supplier of goods and services. Similar proposal has been made with regard to insurance to reinsurer. मैंने एक insurance कर ली, I find the risk is very heavy, I go to another person to share the risk, and in that case, if I have paid the tax on the whole commission, then obviously reinsurer need not to pay the commission. So that is being done to help the insurance industry, so that their administrative work can be done. There is no financial implication. अगर मैं टैक्स देता तो क्रेडिट लेता तो अब टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है. So these are the amendments which have been proposed. Now I open for question answer session. Sir. No. They are very clearly stated. So all to organizers now, and I thank to each one of your participation daily guests. There is a lucky draw. Just wait for 2 minutes. हेलो. उतनी देर में मैं एक इंक्लूड कर दूं, क्योंकि जो हमारे जितने भी मेंबर्स ऑनलाइन वेबकास्ट के थ्रू ज्वाइन किए हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील अपॉलॉजी कि हमारा थोड़ा डिले शुरू हुआ ड्यू टू वेबकास्ट वेंडर. वो हमारे ड्यू टू रेन फंस गए थे रास्ते में. तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने स्टार्टिंग में यही कहा था कि ऑन बिहाफ ऑफ वॉइस ऑफ सीए एसोसिएशन एंड टैक्स लॉ एडवोकेट सोसाइटी हमने ये फिजिकल प्रोग्राम ट्राई किया है आफ्टर कोविड. बिफोर दैट ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलते थे. गिरीश ऊर्जा जी उसके मेंटर हैं और रवि गुप्ता जी उसके प्रेसिडेंट हैं और टेल सोसाइटी चलाती थी. अब वोका ने इनके साथ मिलके और गुरुजी का फर्स्ट प्रोग्राम वेबिनार शुरू किया था. एंड आई एश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ वॉइस ऑफ सीए एंड सीए एसोसिएशन दैट दिस विल कंटिन्यू, एंड विद वन रिक्वेस्ट कि संजय भाई को हमने 400 पार की तरह मतलब बीच में नहीं लटकाना कि वो मेजोरिटी पे ना पहुंचे. हमने इनको जिताना है विद गुड नंबर, और एटलीस्ट हमने 1 to 6 में लेके आना है. विद दिस फोल्डेड हैंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने हमारे साथ बियर किया. 1 घंटा हमारा लगभग ऑनलाइन प्रोग्राम डिलेट शुरू हुआ, तो हम आगे भी आपसे कनेक्टेड रहेंगे. बत्रा जी का भी जो प्रोग्राम है हम इन डिटेल जीएसटी के ऊपर दोबारा वेबिनार सेशन रखेंगे और गुरु जी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे रिलेटेड टू बजट प्रोविजंस. आफ्टर 10-15 डेज जब उनके बजट के सेशन खत्म हो जाएंगे तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा कि जब आपकी कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू बजट, कोई भी आपके मन में है, दैट विल बी पोस्ट पासिंग द बजट. अगर उसमें भी कोई अमेंडमेंट्स आती हैं तो उसके बाद वो सेशन रखेंगे ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चन रह गया तो आप 1 to 1 उनसे क्लियर कर सको. दैट विल बी टोटली वर्चुअल सेशन. विद दीज वर्ड्स once again I thank you all for joining us online as well as offline. Over to Neha for final conclusion. Membership number 87549. Are you with us? Please, sir. Please join us on the stage. Five two three 109. Please join us, sir. Five 17241. नाम है नहीं सर इसमें. 517. Sanjeev Rai ji. Round of applause for you. 402912. एक रहेंगे हमारा लकी विनर कोई. 533967. लकी विनर
508433, 90805. 92907. 87364. 527145. 85629. तो यार कोई झूठा मोटा ही आ जाओ। सर आप बुला लो किसी को भी मत।